ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੇਖ ਨੇ, ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਵ੍ਰਿਤਰ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵ੍ਰਿਤਰਹੰਤਾ ਤੇ ਸੋਮਰਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਜ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਨੌਰਸ ਦੇ ਥੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮਨਵੰਤਰ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਊਰਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਥਿਊਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਹੰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ 'ਚ ਤਾਂ 64 ਇੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 64? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰ ਮਹੋਤਸਵ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਮ੍ਰਿਚਕਟਿਕ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੇ। सोचने वाली गल है। हाँ जी, एक अजिहा नुक्ता है जिस ते होर विचार किया जा सकता है। तो आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं कदीम और दिलचस्प त्योमलाई शख्सियत इंद्र, इन पर बातचीत कर रहे हैं। जी हमारे पास देखें काफी मवाद है, ऋग्वेद के हवाले हैं, तकाबुली मुताले भी हैं, फिर वो नेपाल के त्यौहार इंद्र जात्रा, उस पर मज़ामीन, और आजकल ऑनलाइन क्या बात हो रही है, सब कुछ है। बिल्कुल। मकसद यही है कि इंद्र के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको समझा जाए। मतलब वेदों के जमाने के अजीम देवता से लेकर आज तक उनका सफर कैसा रहा। जी हाँ, और इस सफर को समझने के लिए ऋग्वेद से बेहतर आगाज क्या हो सकता है। ये तकरीबन समझें 1700 से 1100 कब्ल मसीह का कलाम है। काफी पुराना, बहुत पुराना। और इसमें इंद्र सबसे आप कह सकती हैं नुमाया देवता है। तकरीबन 250 हमदे हैं उनके लिए वक्फ। 250? जी, किसी भी दूसरे देवता से ज्यादा। वो गर्ज, बिजली, बारिश के मालिक हैं, देवताओं के राजा, और खास तौर पर उनकी शोहरत है वृतर नामी दानों को मारने वाले के तौर पर। हाँ, ये वृत्तर वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। जी, जिसने पानियों को कैद कर रखा था, तो इंद्र ने उसे शिकस्त देकर पानियों को आजाद कराया। लोग उनसे मदद मांगते हैं, दौलत, जंग में फतह। सोमा रस का जिक्र भी उनके साथ बहुत आता है। अच्छा, ये सोमा रस का क्या ताल्लुक है? सोमा एक पौधे का रस था जो गालिबन ताकत और विजदान देता था, वैदिक रसूमात में अहम था, और इंद्र उसे बहुत पसंद करते थे। सही। अच्छा, एक और बात जो मुझे हमेशा बड़ी दिलचस्प लगती है वो है मुख्तलिफ कदीम तहजीबों की देवमालाओं में मुमासलतें, खासतौर पर इंद्र और यूनानी देवता जूस, उनमें काफी मिलती जुलती बातें हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज्यादा मुमासलतें हैं। देखें, दोनों ही अपने अपने निजाम में देवताओं के बादशाह हैं। आसमानी बाप एक तरह से। बिल्कुल, आसमानी बाप, मुहाफिज, और दोनों ही आसमानी ताकतों, खास तौर पर बिजली और गरज से जुड़े हैं। हाँ, वो बिजली का कड़का तो दोनों का खास निशान है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों में इंसानी जज्बात भी बहुत नुमाया हैं। मोहब्बत, हसद, गुस्सा, फिर वो फानी औरतों के साथ उनकी कहानियाँ। अच्छा। कुछ जराए तो इन कहानियों में मतलब खवातीन के साथ रवैयों, या जिसे वो रेप कल्चर की इब्तदाई शक्ल कहते हैं, उस तरफ भी इशारा करते हैं। ये हम सिर्फ उन जराए का हवाला दे रहे हैं, गैर जानिबदारी से। समझ गया। तो ये मुमासिलतें क्या ये किसी मुश्तरका पुरानी जड़ की तरफ इशारा करती हैं? बिल्कुल मुमकिन है। शायद ये कदीम हिंद यूरोपी अकवाम की मुश्तरका सिकाफती विरासत हो, या कहानी कहने का एक मुश्तरका अंदाज जहाँ सबसे ताकतवर हस्ती भी इंसानी कमजोरियों से पाक नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा मुमासिलतें ही होती हैं, या कहीं इंद्र का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ भी है? हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ भी है। जैसे कदीम ईरानी मतन है अवेस्ता, ज़ुरश्ती मजहब की मुकद्दस किताब। जी। उसमें इंद्रा नाम का एक किरदार है जिसे एक बहुत बड़ा शैतान या देव माना जाता है, सच्चाई का दुश्मन। ये वैदिक इंद्र के तस्वुर से बिल्कुल उलट है। ओह, ये तो बहुत बड़ा तजाद है। जी, और ये दिखाता है कि कैसे करीबी सकाफतों में भी वक्त के साथ मजहबी ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह वो कृष्ण का कालिया नाग से लड़ना और हरकुलेस का हाइड्रा से मुकाबला, उनमें भी हैरत अंगीज मुमासिलतें हैं। तो ये कहानियां भी शायद किसी पुरानी मुश्तरका कहानी से निकली हों? बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। अच्छा, तो इंद्र सिर्फ हिंदू रिवायत तक ही महदूद नहीं रहे। आपने अवेस्ता का जिक्र किया, क्या और मज़ाहिब में भी उनका जिक्र है? जी हाँ, जैन मत के मतों में भी इंद्र का जिक्र मिलता है, जैसे स्थानांक सूत्र है या उत्तराध्यान सूत्र। इसमें एक राजा द्वैमोख की कहानी है जो इंद्र के एजाज में लगाया गया झंडा इंद्र ध्वज उसे गिरता हुआ देखता है। फिर क्या होता है? तो उसे दुनिया की नापायदारी का एहसास होता है और वो राहिब बन जाता है। इसी तरह बुद्ध मत की पाली रिवायात में इंद्र को सक्का कहते हैं और उनकी काफी इज्जत है। अच्छा, बुद्ध मत में भी? जी, बल्कि कुछ माहिरीन तो कहते हैं कि शायद आज के हिंदू मत से भी ज्यादा सिक्का यानी इंद्र का एहतराम बुद्ध मत में पाया जाता हो। उन्हें बुद्ध और उनके मानने वालों का मुहाफिज समझा जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर हिंदू मत में उनकी वो जो मरकजी हैसियत थी वैदिक दौर वाली, वो कम क्यों हो गई? ये तब्दीली कैसे आई? देखें, ये एक बदतदरीज अमल था, एकदम से नहीं हुआ। वक्त के साथ हिंदू फलसफा ज्यादा गहरा, ज्यादा तजरीदी होता गया। मतलब ये कि शिव, विष्णु और देवी या शक्ति जैसे तसव्वुरात ज्यादा अहम हो गए। ये कायनात के ज्यादा बुनियादी उसूलों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तख्लीक, तहफ्फुज, फना, वक्त, खला, शऊर। अच्छा, तो वो ज्यादा बड़े वसी तसव्वुरात हो गए। बिल्कुल। उनके मुकाबले में इंद्र जैसे देवता जो ज्यादातर फितरत की ताकतों जैसे बारिश, तूफान और जंग से मुंसलिक थे, वो निस्बतन पीछे चले गए। शायद इसमें इंद्रिया का तस्वुर भी शामिल हो। इंद्रिया? वो क्या है? इंद्रिया का मतलब है हवास, सेंसेस। तो इंद्र अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद इंसानी ख्वाहिशात और कभी कभार की गलतियों से भी जुड़े माने जाने लगे, जबकि शिव, विष्णु वगैरह ज्यादा मावराई, ज्यादा कामिल समझे गए। समझ गया।
लेकिन वो अवामी सतह पर त्योहारों वगैरह में तो फिर भी मौजूद रहे होंगे ना? हाँ, बिल्कुल मौजूद रहे। उनकी पूजा खास तौर पे त्योहारों की शक्ल में आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कदीम हिंदुस्तान में तो इंद्र महोत्सव नाम का एक बड़ा त्योहार होता था। अच्छा। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल नेपाल का इंद्र जात्रा त्योहार है। उसे वहाँ येनिया पूनी कहते हैं। ये काठमांडू वादी का सबसे बड़ा त्योहार है। 8 दिन चलता है। 8 दिन क्या होता है इसमें? बहुत कुछ होता है। देवताओं और शैतानों के रूप में नाच गाने, जिंदा देवी कुमारी की रथ यात्रा निकलती है और एक लकड़ी का लंबा खंबा गाड़ा जाता है, युनसी थां, जो इंद्र के झंडे की अलामत है। वाह। और इस त्योहार की कोई कहानी भी है? जी, कहानी ये है कि इंद्र अपनी माँ के लिए एक खास फूल पारिजात चुराने जमीन पर आए थे और पकड़े गए। फिर उन्हें छोड़ा गया। तो आज भी अगरचे मरकजी पूजा कम हो गई है, कुछ लोग इंद्र की ताजीम करते हैं, एक ताकतवर लेकिन खामियों वाले देवता के तौर पर, जिनकी कहानियों में सबक है। और हिंदुस्तान से बाहर भी? हाँ, जैसे थाईलैंड के कुछ मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां या तस्वीर मिलती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि इंद्र की शख्सियत की कई परतें हैं। वो वेदों के अजीम देवता भी हैं, यूनानी ज़्यूस से मिलते जुलते भी हैं, अवेस्ता में एक मनफी किरदार भी हैं, जैन और बुद्ध मत में भी उनका मुकाम है, और आज त्योहारों के जरिए जिंदा भी हैं। बिल्कुल सही। उनका सफर बहुत दिलचस्प है। वैदिक दौर के उरूज से लेकर बाद के अदवार में मजहबी अहमियत में कमी तक, लेकिन सकाफती तौर पर वो हमेशा मौजूद रहे। वो ताकत की अलामत है, लेकिन साथ ही इंसानी खामियों यानी अंद्रिया और फितरत की ताकतों की भी याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं और सबक आमोज हैं। जी हाँ। और ये बात हमें इस सोच पर छोड़ जाती है कि इंद्र जैसी शख्सियत का ये जो इर्तिका हुआ है, एक आला तरीन देवता से एक ज्यादा पेचीदा, कभी कभी खामियों वाले किरदार तक, ये सदियों के दौरान उलूहियत, ताकत और अखलाकियात के बारे में इंसानी समझ कैसे बदली है, उसकी अक्कासी कैसे करता है। कभी सोचा है आसमान का वो जबरदस्त लाइट एंड साउंड शो, वो तूफान जो सब कुछ हिला दे, उसके पीछे सिर्फ साइंस है या कोई अनोखी कहानी? ये सिर्फ साइंस नहीं, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, वो ज्ञान हाजिर है जिसका इंतजार था। नमस्ते। आज हम मिलेंगे देवताओं के राजा, मौसम के मास्टर और स्वर्ग के शक्तिशाली शासक इंद्रदेव से। तो कौन है इंद्र? इमेजिन कीजिए एक राजा जिनका सिंहासन स्वर्ग में है, जिनकी राजधानी है सोने से बनी अमरावती। उनके पास है ऐरावता, एक दिव्य सफेद हाथी जो बादलों पर चलता है, और उनका हथियार वो है वज्र, जो किसी लोहे या सोने से नहीं बल्कि एक महान ऋषि दधीची के आत्म बलिदान से उनके हड्डियों से बना है। एक ऐसी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए बनी है। इंद्र सिर्फ एक राजा नहीं, वो उम्मीद है। वैदिक काल में इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। वो युद्ध के देवता थे जो असुरों से हमारी रक्षा करते थे। उनकी सबसे बड़ी कहानी है वृत्रा नाम के राक्षस से उनकी लड़ाई की। वृत्रा एक ऐसा सांप जैसा असुर था जिसने दुनिया की सारी नदियों का पानी रोक लिया था। धरती सूख रही थी, लोग प्यासे थे। तब इंद्र अपने वज्र के साथ आए। एक ऐसा युद्ध हुआ जिससे आसमान कांप उठा। आखिर ने इंद्र के वज्र ने अधर्म का अंत किया, वृत्रा को हराकर नदियों को मुक्त किया और सूखी धरती में फिर से प्राण फूंक दिए। इसलिए उन्हें वृत्रहन यानी वृत्रा का वध करने वाला भी कहते हैं। वो बारिश लाते हैं, फसलों को उगाते हैं और खुशहाली देते हैं। लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इंद्र एक परफेक्ट देवता नहीं है। उनमें इंसानों जैसा अहंकार है, अपने सिंहासन को खोने का डर है। कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं और इनकी यही कमजोरियां उन्हें और भी रिलेटेबल बनाती हैं। उनके कई नाम हैं। शक्र मतलब शक्तिशाली, देवेंद्र यानी देवों का इंद्र, और महेंद्र यानी महान इंद्र। हर नाम उनकी एक अलग क्वालिटी को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, ऐसी अनंत शक्ति के साथ जीना कैसा होता होगा? क्या आपने इंद्रदेव की कोई और कहानी सुनी है? समय के साथ जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा बढ़ी तो इंद्र का रोल थोड़ा बदल गया, लेकिन आज भी वो देवताओं के राजा हैं। वो एक सिंबल है हिम्मत के, रक्षा के और प्रकृति की उस शक्ति के जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है और सबसे बड़े हीरो में भी थोड़ी कमियां हो सकती हैं। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है इंद्र जात्रा जैसे फेस्टिवल्स में और उन कहानियों में जो हम बचपन से सुनते आए हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक इंद्र है जो चुनौतियों से लड़ता है, कभी कभी डगमगाता है, लेकिन आखिर में सही रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया में रोशनी लाता है। वादा है अगला वीडियो 2 गुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।